Hare Krishna and good evening and welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So, and we are conducting the Kunti Stuti, and now we have completed verse number 27 and we are 28, and we are going to start with 1.8.29. So, regular recitation is now over, so let's start with the class. So, verse 1.8.29. न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितां तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दैत्यो अस्ति तर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमो मतिर्नृणां. Very important verse. And here Kunti Maharani is trying to tell how Lord is, when he comes to this world, जब इस दुनिया में आते हैं एकदम साधारण मनुष्य की तरह बिहेव करते हैं, किसी को लगता नहीं है कि वो भगवान है. Can anyone read the translation, please? Who can read the translation? O Lord, no one can understand your transcendental pastime, which appear to be human and are so misleading. You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine that you are a partial. ये common point हमेशा हम लोग discuss करते हैं कि Lord is never partial, because he is never partial because he is always for his devotees. सब भक्तों के लिए हमेशा रहते हैं, but उनका activities are highly misleading. हर चीज उनका लगता है आपको कि तो मनुष्य ऐसा कर सकता है क्या? It's not only just Krishna Leela, even Ram Leela, Narsinga Leela, Narsinga Dev coming as half man, half lion. So confusing. ऐसा कैसा हो गया आदमी हो सकता है? मछली, मत्स्य अवतार में मछली बड़ा मछली बन के आए थे और बात कर रहे हैं राजा के साथ. क्या just imagine one fish starts talking to you, how you will feel? Just imagine small fish से लेके इतना बड़ा मछली बन गया and it is interacting with you. Every leela of Lord, whenever he has come to this world, it has been always been confusing. But most confusing are the two leelas. One is of Ramchandra ji and one is of Krishna. Because other leelas are only for a specific purpose, pertaining to only for a certain period of time which is very short. Like always I say, Nrsimhadev came at 6:45 and finished his work, and by 7:15 he went back. He didn't do any no dialogue, nothing. Just came out of the pillar, took Hiranyakashipu, put him on his lap, khatam. And then, of course, he was very angry. So all Prahlad Maharaj and everyone were doing his prayers. So that's the only thing. Otherwise, if you see the entire 7th canto is nothing but Prahlad Maharaj story. And 7वां जो canto है, उसमें अगर आप देखने जाओगे ना, killing process is only one small chapter. Hardly 5-6 वर्ष में खत्म कर देते. So that is why when we discuss about other leelas, there isn't much to discuss other than those hidden reasons of Lord's appearance. मगर जब आप कृष्ण लीला और राम लीला पढ़ते हो, तो you understand, oh, Lord stayed for a long time and he interacted with lot of people. So, and his interactions were also quite misleading. One of the most misleading thing is Tulsidas ji writes about Krishna. Tulsidas ji says about Krishna's Bal Leela. Says, एक बार कृष्ण बैठा था घर पे, यशोदा मैया आई, छोटे से बालक. ठीक है बेटा, तू अभी यू आर गोइंग टू गोचारण एंड ऑल, वेरी नाइस, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, मगर एक प्रॉब्लम है, ये चोरी करना छोड़ दे. कृष्ण बोला, मैं सब कुछ चोरी कुछ खास करता नहीं है, तो ठीक है, अगर छोड़ना है, हाँ बेटा तुझे चोरी छोड़ना पड़ेगा. क्या है, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है तेरी, तेरा शादी कैसे करूं? जब रिश्तेदार आएंगे बोलेंगे कि क्या करता है लड़का, और अगर मैं मालूम पड़ा कि लड़का चोरी करता है तो कौन लड़की देगा अपना? तो आई एम वेरी मच टेंस्ड. सो अगर आपको शादी, मुझे तेरी शादी करानी है, कृष्णा को मूड आ गया. कृष्णा को मूड आ गया, चलो अब मैं
मुझे भी, हाँ सही बात, ये पहले ही बोल देते, मैं करता ही नहीं था, छोड़ देता, छोड़ छोड़। नाउ व्हाट? हाँ कब कर रही हो मेरी शादी? टाइम है थोड़ा, आराम से, आज हो जाएगा शादी? आज नहीं, आपका शायद आज नहीं। अच्छा अच्छा, देख माँ जल्दी से मेरी शादी कर दे, अच्छी बात है, तूने सही बात बोला। क्या मैं भी देख रहा हूँ, तू भी बूढ़ी हो गई है, अभी थोड़ा उम्र हो गया, काम नहीं हो रहा है, अभी बहू आएगी, सुबह रात पैर दबाएगी, एंड फिर घर में भी चहल पहल रहेगा और तेरे मदद भी हो जाएगी, जल्दी से तू कर ले। ईश्वर में से हाँ ठीक है करती हूँ, लड़की देखने कब जाएंगे? बोला लड़के वालों को, लड़की वालों को बात करती हूँ मैं, आज नहीं कल। अच्छा कल, तो कल मतलब कैसे होता है, कितने देर में होता है? छोटा सा है, देखो बेटा तुम सो के उठोगे ना, उसके बाद कल आए तो दब जाए। अच्छा ठीक है, तुरंत, अच्छी बात है। कृष्ण तुरंत जाके लेट गए, कृष्ण जाके तुरंत लेट गए, 5 मिनट सोने का नाटक किया, फिर उठे ऐसा, टायर्ड अप, गॉट अप इन द मॉर्निंग फ्रेश। हाँ चलो माँ मैं सो के उठ गया, चलो लड़के देखने जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। इतने में बाकी के गोपियां जो थी वो लोग सब आए, उनको तो बहाना चाहिए कृष्ण को छेड़ने, तुझसे कौन शादी करेगा, तू काला कलूटा, तुझे कौन लड़की देगा, इतना काला कलूटा तो है तू। इतने में कृष्ण बोला, काला काली तू, तेरा पति, तेरे बच्चे, माँ मैं काला हूँ क्या? नहीं नहीं तो एकदम सोना है, एकदम गोरा है। ठीक, तो नाउ व्हाट? ये सब सुन रहे थे, इतने में नंद बाबा है। नंद बाबा के बोले, हाँ बेटा क्या हो रहा है? पिताजी मुझे लड़की देखना है, शादी करनी है, मुझे लड़की देखने जाना है। हाँ उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। माँ ना बोल रही है, देखो नहीं मैं अभी जा रहा हूँ बस लड़की देखने के लिए, अभी जाके आज बात करके आता हूँ, फिर 1-2 दिन में तेरी शादी करा। तुरंत कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठ गए, छोटे से लाला है ना, बैठ गए गोद में, बैठ गए। अब माँ को समझाओ, माँ समझती नहीं है, मैं समझाता हूँ तू जा। वहां से कृष्ण निकले, कंफर्म 2-3 दिन में मेरी शादी है। निकले, कहाँ नहीं गए, सीधा गए। ऐसे अक्सर ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा व्यक्ति, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? यस, दोस्तों के पास। और वहाँ उसके ग्वाल वाल सब खेल रहे हैं, उसके फ्रेंड्स सखा सब खेल रहे हैं, और कृष्ण एकदम गया वहाँ जाके स्वीट स्माइल दे रहा है, कुछ बोल नहीं है, इज ओनली गिविंग ए ब्लशिंग स्माइल। उसके दोस्त लोग आ गए, दोस्त लोग बोला ऑल डिवोटीज, बोलो कौन है? और बोले क्या कलुआ, क्या हो गया? See, this is Sakha Ras, Sakhya Ras. Mind you, this is in a different plane, a different platform. Never don't think that we can enter into that. We are not still mature enough. But that's how they are. Because you go to Jagannath Puri, they refer Jagannath ji house, Kalya, hey Kalya, chal. And Jagannath ji जब बाहर आते हैं ना, on the day of Jagannath Rath Yatra, आगे एक आदमी 2 लकड़ा, that what do you get? बनाना का जो झाड़ का होता है ना, उसका लकड़ा रहता है, उसमें आवाज आती है, बट इट विल नॉट हर्ट यू, इट विल नॉट हिट यू। इवन व्हेन यू आर गोइंग टू टेक दर्शन आल्सो, नॉर्मल डेज आल्सो, खाट खाट ऐसा आवाज जोर का आएगा, लगेगा नहीं, बट ना इट्स लाइक वे टू शो यू ऑफ। तो जगन्नाथ जी बाहर आते हैं ना, तो एक पांडा सामने डंडा लेके चल चल, ऐसे यू नो डरा के चलो, एंड एक जन पीछे से कालिया चल चल कालिया घसीटते हैं बाहर। वो इट्स अ अद्भुत लीला ऑफ द लॉर्ड एंड वेरी फनी। सो यहाँ पे दोस्तों के साथ बोला, तो अब क्या हो गया कलुआ, इतना हंस रहा है? मेरी शादी होने वाली। अच्छा तुझे कौन लड़की देगा, तुझे कौन लड़की देगा, एकदम मरियल सा तो है तू। कृष्ण वाज वेरी स्लिम, एकदम मरियल सा तो है, तुझे कौन? हाँ कुश्ती करके देखो मेरे साथ, हाँ
बोलो सुबह आ जाओ सब लोग आ जाओ, मैं कुश्ती करके दिखाता हूँ कौन पतला है कौन मोटा है। देखो तुम लोग मुझे छेड़ोगे ना, मैं जाता हूँ। तो फ्रेंड्स बोले कहाँ जाएगा, आखिर में हमारे पास ही आएगा ना, जाके कहाँ जाएगा, वापस हमारे पास ही लौट के आएगा। नहीं मैं जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, तो कहाँ जाएगा बोल, ससुराल चला जाऊँगा, ससुराल में जाके बैठ जाऊँगा। So we have to understand, this is the same supreme personality of Godhead who is running billions and trillions of Brahmanda. But as Kunti Maharani says, when he comes to this material world, his pastimes are totally Mysterious. Once a person was doing Vrindavan Parikrama. Vrindavan Parikrama is very, very auspicious. It's only 12 kilometers. 3 घंटे में हो जाता है नॉर्मल, मतलब लोग जल्दी करने वाले भी हैं, बट नॉर्मल से 3 घंटे में हो जाता है। तो एक व्यक्ति भक्त कर रहा था और भक्त को गुरु ने बोला था, देखो वृंदावन में ही भगवान मिलेंगे। वृंदावन की परिक्रमा करते हो, मतलब व्हेन यू आर डूइंग परिक्रमा, एक तरफ अंदर वृंदावन है, उस तरफ कृष्णा नहीं, बाहर की तरफ कृष्णा नहीं। There is outside only one, but there is no Krishna outside. जो कृष्ण, जो एक्चुअल कृष्ण है, वो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं और वृंदावन के बाहर कभी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? Any idea? See, पूरी जगत को नचाते हैं भगवान। हाँ, anywhere you go, पूरी दुनिया को नचाते हैं, मगर जब वृंदावन में रहते हैं वो नाचते हैं, वो नाचते। इधर एक छोटे से एक मटका छाछ के लिए, एक मक्खन का एक छोटा सा टुकड़े के लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज वहां भक्ति देवी है, शी इज नन अदर देन राधा रानी। इसके लिए कृष्ण कभी राधा रानी को छोड़ के वृंदावन के बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए यू विल सी द्वारकाधीश एकदम कट टू कट, क्या हीरे, पहला चीज तो आप जाओ द्वारकाधीश में, क्या इतना बड़ा हीरा, लोगों का नजर भगवान पे कम, हीरे पे ज्यादा रहता है। दैट्स अ अट्रैक्शन। एंड देन व्हाट एल्स इज देयर, यू विल सी लॉर्ड वेल डेक्ड अप, यू नो, perfect and everything, food is all from time to time, there is nothing, no confusion, nothing. But in Vrindavan, which temple you can see him Lord in a perfect dressed up condition? Every temple you will see him, you know, dots, nice minerals कलर करते हैं। क्यों? जब वो गोचरण करने जाएंगे क्या करेंगे, वो जो यशोदा मैया बहुत बढ़िया तरीके से उनको डेकोरेट करके भेजेगी, बट बाल बोलेंगे क्या है, व्हाट इज दिस, हटा, सब डेकोरेशन उसका निकाल देंगे। द्वारकाधीश वहां पे जो पगड़ी पहनते हैं वो लाखों की पगड़ी पहनते हैं, वेरी कॉस्टली ड्रेसेस द्वारकाधीश पे, बट यहाँ पे एक टर्बन बांधा गमछे से और एक मोर मुकुट, मोर पंख लगा लिया, बस इधर का हीरो वही। एंड द बेस्ट पार्ट इज, व्हाट डज ही डू? He is always with his friends playing. You will see Dwarkadish any time playing. But he is in awe and reverence. He is the boss. एकदम कंपनी का CEO जैसा बैठते हैं, बट यहाँ पे कलुआ किधर कर रहा है, क्या कर रहा है? That's the way in which they interact. So this person was doing परिक्रमा, but गुरुजी ने बोला था, ज्ञान में सुना था, कर रहा है परिक्रमा। थोड़ा देर आगे गया तो देखा फ्लूट का आवाज आ रहा है, बांसुरी का आवाज। बांसुरी आवाज आना चाहिए यहां से, आ रहा है यहां से, बाहर की तरफ। देखा तो एक व्यक्ति पीतांबर पहन के एकदम वेरी अट्रैक्टिव, तो ये अपना परिक्रमा कर रहा है। उसने बुलाया, मैं भगवान, स्वयं भगवान आया हूँ तेरा दर्शन देने के लिए, तो तू कहाँ इधर की तरफ क्या देख रहा है, बाहर की तरफ देख, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बोला देखो मेरे गुरुजी ने बोला है कि
कृष्णा वृंदावन में ही रहेंगे, वृंदावन के बाहर जो भी है वो डुप्लीकेट है, वृंदावन के बाहर जो भी है वो डुप्लीकेट है, मुझे नहीं देखना। तो क्या बात कर रहे हैं, तुझे मैं डुप्लीकेट लग रहा हूं? हो ही नहीं सकता। कृष्णा विल बी ओनली इन वृंदावन, एंड इन वृंदावन वॉट एवर लीला इज डस इज मोस्ट कंफ्यूजिंग। कुंती महारानी says, you know, seeing earlier, she says, are you the same person whom when that will come to that bheti जो वर्ड्स आता है ना, उसमें she will tell, भाई तुम वही आदमी है जो यशोदा माँ का हाथ का डंडा देके रो रहे थे, आंखों के काजल पूरा चेहरे पे लग गया, आंखों पे लग गया और एकदम डर रहे, जैसे कि ना मम्मी मारने वाली और डर रहा है। और वही व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को, एवरीवन कहते हैं सिर्फ उनकी भ्रुएं ऊपर हो जाती है तो बड़े बड़े देवता कांपने लगते हैं, और वो व्यक्ति यहाँ पे कांप रहा है माँ के सामने। भीति यत अपि यत विवेति, जो भय है वो खुद आपसे डरता है, वो व्यक्ति एकदम साधु बन के। So whatever Krishna does in Vrindavan is always beyond our thinking capacity, and he will behave like a fool because he wants only love of his bhaktas, his devotees. He doesn't want anything else. ना वो छाछ की पड़ी है ना वो माखन की पड़ी है, क्योंकि उनका डिजायर था, गोपियों का डिजायर था कि आए और माखन चुराए, उन्होंने चुराए, ना कि वो आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंता अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकं भक्तिम इत्थं भूता गुणो हरि। आत्मा राम, ही इज आत्मा राम, एवरीथिंग, ही इज सेल्फ सैटिस्फाइड, ही डजंट रिक्वायर एनीथिंग। उनके पास क्या नहीं है। आप जो भोग बना के खिलाते हो, ये मत सोचना भगवान हाँ ये आएगा खिलाएगा फिर मैं खाएगा। He just wants to see your heart. Are you conscious about me? That is why Prabhupada named this institute as International Society of Krishna Conscious. Are you conscious even while eating your food? Are you conscious that I am existing in and around you? तभी आप भगवान को भोग लगाओगे, तभी आप भगवान की आरती करोगे, तभी आप भगवान का नाम लोगे। बिकॉज आप भले आपका सारे क्रियाक्रम करो, मतलब जो भी आपका ऑफिस बिजनेस जो भी है वो करो, बट साथ में भगवान क्या बोलते हैं, मुझे भी है, आई एम द डूअर ऑफ एवरीथिंग, आई एम, इट इज बिकॉज ऑफ मी एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग। एंड द प्रॉब्लम इज वी आर ऑलवेज वरीड अबाउट द टेम्पररी, वी आर नॉट वरीड अबाउट द परमानेंट। We are always worried about the temporary. And what is temporary? Right from the body to this world, to our possessions, everything is temporary. But we are worried about that. एक छूटने वाला ही, आपका धन आपके हाथ से छूटने वाला है। The day you are going to be on your deathbed, आपका धन आपके हाथ से खींचा जाएगा। आपको आपका शरीर भी पकड़ के रखेंगे तो भी हम पाश, what is the meaning of पाश? रस्सी, it's a rope. उस रोप को डाल के आपको खींचा जाएगा, जैसे कुत्ते को कैसे खींचते हैं, वैसे आपको इस शरीर में से बाहर खींचा जाएगा। That is, so it is better that we prepare ourselves now rather than saying हाँ देखेंगे, मरना तो है एक दिन। लोग आके बड़ा बड़ा डायलॉग बोले, मरना तो है एक दिन सबको। अरे मरना है, पर मरण को सुधार लो अभी। Everyone has got time. Now you have got time to rectify. You make your death glorious instead of making your death a tragedy. Death is for sure. जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च। जो अब जन्म लेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा। There is no doubt about it. But हम लोग जन्म क्यों लें? हम लेंगे तो भी वहां जन्म लेंगे। इस दुनिया में, इस धरती में क्यों जन्म लेना है जहां पे हमको वी आर ऑलवेज ट्रबल्ड बाय ऑल आवर आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक एंड अदर क्लेशर्स विच आर बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। तो हमको वो नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट अ डिवोटी इज ऑलवेज स्मार्ट। ओके, समबडी रीड द पर्पस।
the Lord's mercy upon the fallen soul is equally distributed. He has no one as a specific object of hostility. The very conception of the personality of Godhead as the human being is misleading. His pastimes appear to be exactly like human beings, but actually they are transcendental and without any tinge of material contamination. He is undoubtedly known as partial to his pure devotees, but in fact he is never partial, as much as the sun is never partial to anyone. By utilizing the sun rays, sometimes even the stone become valuable, whereas a blind man cannot see the sun, although there are enough sun rays before him. Darkness and light are two opposite conceptions, but this does not mean that the sun is partial in distributing its rays. The sun rays are So what is the crux you get here? What is the crux you get? Prabhupada is giving a very important crux. भगवान अपनी कृपा देने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, लेने में हम कंजूसी कर रहे हैं. The sun is there. Let's say the sun is there. When it is in the other side of the world, when we are on the darker side, the sun is still existing. We are on the darker side. तो जैसा हमको जिस वक्त हम भगवान की कृपा लेंगे, लॉर्ड इज रेडी टू गिव. लेना ना लेना ये आपके ऊपर. इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू टेक द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. वन में से व्हाई डू आई नीड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड? व्हाई डू वी नीड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड? जरूरत क्या? साइंस इज गिविंग एवरीथिंग ना. बाकी बचा तो स्विगी जोमेटो दे देते हैं. तो व्हाई डू यू नीड साइंस? व्हाई डू यू नीड गॉड? व्हाई डू वी नीड गॉड? Yes, tell me, who can answer me? माता जी, भगवान की जरूरत क्या है? क्यों जरूरत है भगवान की? जीव को सुधारना. जीवन को? कौन से जीवन को सुधार रहे हैं? भक्ति करने से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता. Yeah, I think we can be happy. That's it. That's true. Yeah. Well, you get a peace of mind. You get that, but problems don't get solved. I जीवन सुधारना, भगवान जीवन सुधारना नहीं बैठे. यस माता जी, भगवान किसके लिए बैठे? फास्ट. बोलिए नम्रता माता जी, बोलिए भगवान किसके लिए जरूरत है? भगवान की किसके लिए? अगर है तो क्यों? यस माता जी, बोलिए. भक्ति करने के बाद वैकुंठ में बुला लेंगे. द लालच है. to remain joyful. See, that is why भक्ति अहेतु की होनी चाहिए. क्यों वैकुंठ में बुलाएंगे? बोलेंगे अगले जन्म में आ जा, चल तुझे मेरी वानर सेना में एक छोटा सा बंदर बना दे, जा और मेरे लिए पत्थर उठा, मेरा सेवा कर, युद्ध लड़ मेरे लिए. It's not necessary, I'll rest. No, because this type of consciousness is very bad. A person who is a servant, can he decide what his master will give him? No. It is up to the master what to give. In fact, he can give you something more, 10 times, 1,000 times, crore times more than what you can ever ask for. हम लोग है ना एक सीमा में ही मांग सकते हैं. क्यों? मेरा सीमा बिकॉज हम एक दायरे में है, उस दायरे की सोच के ऊपर हम लोग बाहर सोच नहीं सकते. मैक्सिमम आई में आस्क, ओके गिव मी अ हाउस इन स्विट्जरलैंड. That's what we can do. We comparatively, we are always comparative to others. इसके लिए मेरे पड़ोसी ने BMW खरीदा, भगवान मुझे इससे भी बड़ा गाड़ी दो. क्या वो BMW रखा है, तो मर्सिडीज रहेगा, दोनों बम्पर टू बम्पर में. क्या चाहने वाले? We have never, our thinking process can never go out of it. We are still in the same box. बस I want to be, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, वही ऐड है, वही चल रहा है. How come I am not going ahead? Be it be any professionally, be it be materialistically, when you are owning something, कुछ भी है अगर आपके पास, तो भी हम लोग का एक ही है. Why we go to parties?
Why we want to go to parties? किसकी सारी कैसी, किसके पास कौन सा ज्वेलरी है, क्या पहन के आया, and everyone wants to show that. That's why what's the purpose of these so-called clubs? Why we didn't have the club culture in our country? Our sadhus are not fool. Our shastra is not a fool. What does a club give you? In the end, what are they giving you? It is giving you for breaking how to break the 4 regulative principles. You go to any club, what happens in the end is 4 regulative principles are broken, and you are made worse than an animal. Meat eating, intoxication, illicit sex, and gambling. When in our ancient time, kings made dharamshalas, and that too only at places of pilgrimage or at places of transit. No, जब चल के आता था व्यक्ति तो उसको आराम के लिए एक प्याव रखते थे, थोड़ा भोजनालय कर रखते थे, बस इतना ही था. No, we will give you something very nice, 5-star hotel, और जकूजी ये वो सब देंगे आपको. इसके नाम पे हमने क्या किया, क्या पाया? Our process, our goal of life has been destroyed. And that is why Western culture, I'm not against Western culture. Everything Western is not bad. But remember one thing. What is required for the soul, only the Shastra can give you. No other culture can give you that. जो आपको आत्मा को जो चीज की जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ आपको शास्त्र से मिल सकता है. हाँ, आपके तन के लिए, आपका नाम, ये सब करने के लिए material things are important. I don't deny material things are important, but might be for enjoying a nice, you need a good salary package to have a nice food, live a nice lifestyle, but that is all for the body. But what about the soul? Where about the soul? What can we derive for the soul? Tell me, Amazon and Flipkart, are they giving you one item for the soul? अंतिम क्रिया का कार्यक्रम का सामान मिलता है उसको, हैं? No jokes. एक बार उसके लिए आपको योर लास्ट राइट्स के लिए आपको सामान मिल जाएगा. बट डू यू गेट थिंग्स फॉर द सोल? वन थिंग फॉर द सोल? इट्स नॉट पॉसिबल. बिकॉज़ दैट कैन बी पॉसिबल, दैट कैन बी गॉट ओनली एंड ओनली इन द स्पिरिचुअल वे. यस प्रभु, कंटिन्यू योर रीडिंग. The sun rays are open to everyone, but the capacity of the receptacles differ. Foolish people think that the devotional service is flattering the Lord to get special mercy. Factually, the pure devotee who are engaged in the transcendental loving service of the Lord are not a mercantile community. The mercantile house renders service to someone in exchange of values. The pure devotee does not render service unto the Lord for such exchange, and therefore the full mercy of the Lord is open for him. 1 minute. This point which is mentioned, mercantile means what? B2B. ये भाषा में बोलेंगे तो समझ में आता है. B2B, हाँ ये सर ये नो. So B2B means what? हम लोग 500 रुपया दिया है, 5000 चाहिए, क्या 5000 का माल चाहिए. That's the attitude with which people go to the temple. That's B2B. Return में कुछ चाहिए तो B2B. But we don't have to have that attitude at all. You have to just go and do it. See, हम लोग सब भगवान से चाहते हैं. The problem is हम सब भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते. And Shastra only teaches us भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो. That is why gopis are the most supreme devotees, because उन्होंने भगवान से कुछ नहीं चाहा, भगवान को देना चाहा सब कुछ. Whatever they had, everything. And what was the most important thing which Lord is always asking from you? Is your man. Mind. मयि एव मनो अदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय. Lord clearly says this. कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका मन चाहिए. Give me your mind, because rest of the things you are anyhow it is going to be, your body is going to be creamy भस्म या wheat. जलेगा, शरीर जलेगा, खाक बनेगा, या तो कोई कुत्ता बिल्ली खाएगा, कोई कीड़े खाएंगे. दफनाया जाएगा तो कीड़े खाएंगे, जलाया तो खाक बनेगा, राख बनेगा. तो ये शरीर आप किसी भी तरह भगवान को नहीं अर्पण नहीं कर सकते. और अर्पण क्या करोगे?
आपका मन, पर हमारा मन किधर लगा हुआ है? पूरी दुनिया में लगा। भगवान छोड़ के सब जगह। You ask, come on, let's go for a party, let's go for out for something else, let's do this, let's go for shopping, everything मन is ready. पर जैसे भक्ति का बोला ना, प्रभु जी बहुत ट्रैफिक है, आने में बहुत तकलीफ होता है, क्लास में बहुत, जैसे भक्ति का बोला ना, प्रभु जी क्या आज ही मेहमान आ गए। The day you decide to go to a party, let's say, और उस दिन मेहमान आने वाले हैं ऐसे आपको बोला, तो आप 100 झूठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बी ऑनेस्ट, बोलेंगे हाँ आज मैं बिजी हूँ, आज मेरा घर पे ये है वो है, कुछ ना कुछ बोलेंगे। बट व्हेन इट्स टू कम्स टू क्लास, आज सत्संग में जाना है, तो हम तुरंत क्या बोलेंगे? हाँ आइए नो प्रॉब्लम, आज क्लास कैंसिल है। सिंपल, क्यों? लेट्स एंजॉय। प्रभु जी का क्या वही प्रसाद खाना, लेट्स एंजॉय, कुछ और कुछ खाएंगे, कुछ और एंजॉय करेंगे। That is the problem with this मन। That is why मन के ऊपर भगवान ने इतना श्लोक दिया है भगवद गीता में। उदारेति आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसाध्यते, आत्मैव हि आत्मनो बंधुर, आत्मैव हि रिपु आत्मनः। ये मन जो है, इससे आप उदार मतलब ऊपर की तरफ भी जा सकते हो, और यही मन आपको अधोगच्छति में ले। कि मन में जब इच्छा उठती है तभी आप कार्य करते हो। मन में इच्छा उठती है, इंद्रियां डिमांड करती हैं, और दोनों को पूरे करने के चक्कर में नरक में बैठे रहना है अपने को, और उसके बाद वापस इधर ही आएंगे। डोंट वरी, कभी गधा तो कभी घोड़ा तो कभी कीट पतंग, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जन्म मिलेगा। और उसमें जो मैथुन का जो रस है वो आपको हर जानवर के रूप में आपको मिलेगा। जो खाने का, you know the very thought of what the pig eats, the very thought of what the pig eats, it's like we can't even अपना माइंड आगे जाएगा ही। एक सुअर खाता क्या है, बट आप जाके पूछना उस सुअर क्या खा रहा है, इतना घटिया चीज खा रहा है, कोई अच्छा चीज खा, पाव भाजी, मोमोस, नूडल्स, चाइनीज, सब कुछ खा। सुअर क्या बोलेगा? कभी ये खा के दे, मालूम पड़ेगा क्या टेस्टी है। You are going to tell anyone who is eating non-veg, please sir, you are eating life. क्या तुम नहीं खा रहे हो? तुम पेड़ पौधों में भी जान है, तुम खा रहे हो? You will justify everything like a pig. Like a pig, he will also justify. एक सुअर की तरह, सुअर जैसा बोलेगा नहीं, बड़ा आनंद, गटर में जो सोने का आनंद है ना, बिना एसी का मजा है। What all justification, all dirty things on this earth. I'm just giving one example. You go and ask a cockroach which is there inside the gutter. Are you enjoying? It's US, man. For him it is best place. It will be something better than Switzerland also. Because that's what his mind is only can think about. It is only in the human life can one think out of the box, out of that eating, sleeping, mating and defending. That is why human life is not made for these things. They are made for something higher, and that higher can be achieved only when Shastra is imbibed in your life. जीवन में शास्त्र उतारना ही है, तकलीफ लगेगा, तकलीफ नहीं दायक, तकलीफ देता नहीं है, बट आपको लगेगा, because we are habituated to live like animals. क्या 84 लाख योनि में भटक के आ रहे हैं ना, 84 नहीं, 84 लाख में से एक स्पीसीज कम, 4 लाख स्पीसीज ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो 80 लाख स्पीसीज में आप भटकने के बाद what happens? You get habituated. For 80 lakh species बोला तो क्या हुआ? It's a huge time. And living like an animal for so many years, living so many birds, just eating, sleeping, mating and defending. What are you going to get? And Lord says, oh, very good. You want to enjoy? Enjoy. Lord is always. Please continue. Let's continue.
Suffering and needy man, inquisitive person, or philosopher make temporary connection with the Lord. What is the shloka? Can anyone tell me that? ये श्लोका कौन सा है? Does anyone remember which shloka Lord says this? चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतरसभ. That's what Srila Prabhupada is saying. They make temporary connection. Who? Men who are suffering, who are needy, inquisitive, and or philosophical people. They make temporary connections. Shloka also says the same thing. चतुर्विधा भजन्ते माम. 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं. कौन? चतुर्विधा भजन्ते ना जन सुकृति नो अर्जुन. उनके अंदर थोड़ी सुकृति है. कौन? आर्थो. आर्थो मतलब जो तकलीफ में, चाहे वो पैसे का तकलीफ हो, शारीरिक तकलीफ हो, जो भी हो, वो व्यक्ति आता है. ये लोग सबको है ना, वो 4 तरह के लोग हैं जो भगवान के साथ टेम्पररी कनेक्शन करते हैं. बट भगवान के बारे में सब कुछ कौन जानेगा? कौन सा व्यक्ति जानेगा? नॉट जस्ट डिवोशन. He says inquisitive, Jnani is both dear to me, but who will actually learn Lord in fullness? बहु जन्मानामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ. ये भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में. बहु जन्मानामन्ते, बहुत जन्मों के बाद, बहु जन्मानामन्ते ज्ञानवान, वो व्यक्ति ज्ञानी है. कौन? जो जानता है वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव, सब कुछ वासुदेव. हम लोग बोलते हैं दुनिया मिथ्या है. क्या ये दुनिया मिथ्या है? ऐसे देखने जाओ तो नहीं है, रियलिटी में है. खाना रियल में खा रहे हो, ई खाना तो नहीं खा रहे हो, वर्चुअल खाना तो नहीं खा रहे हो, एक्चुअल खाना खा रहे हो. तो एवरीथिंग इज रियल. टेस्ट भी आ रहा है, कड़वा चीज आ गया तो कड़वा लगता है, मीठा चीज आया तो मीठा लगता है. But how it is mithya? Because it is not tangible. It does not have a long life. 30, 40, 50, 60, 70, 80 बाद में when your this thing is over, it is gone. And at the end of the whole Chaturyuga, there is going to be pralay. So मिथ्या अगर है तो मिथ्या कैसी है? अगर आपको अभी तक पता नहीं कि वासुदेवम सर्वमिति. Earlier verse, what did Lord say? I am Kal, I am time. So you have to understand Lord in the form of time also. If you don't meet, you if anyone says ना, मुझे भगवान से नहीं मिलना है, क्या करना है भगवान से? वो अपने घर में सुखी, मैं अपने घर में सुखी. तो भगवान बोले डोंट वरी, एट द टाइम ऑफ डेथ तो मुझे मिलना ही पड़ेगा. I will come in the form of Kal, time, death, and you will have to meet me. So better we meet God before that. rather than meeting. मीटिंग पर बात एक छोटा सा किस्सा याद है. एक बार राधा रानी, आचार्य का भाव है, ब्रज का भाव है. राधा रानी पहली बार वृंदावन में घूमते खेलते, छोटी सी. तो कृष्ण भी छोटे से. कृष्ण ने देखा राधा रानी आई, बोला. राधा रानी ने पूछा तुम कौन हो? बोला क्यों आप पहली बार आ रही हो? हाँ पहली बार आ रही हूँ. क्यों आप कहाँ रहते? कहाँ? बरसाना में रहते. तो आप आते क्यों नहीं हो रेगुलरली यहाँ? नहीं हमारा कहाँ, हम तो बरसाना में रहते हैं, हमारे पिताजी तो बहुत बड़े मालिक हैं वहाँ के, तो हम वहाँ खुशी खुशी रहते हैं हमारे सखियों के साथ. और ऐसा भी सुना है वृंदावन में एक चोर रहता है, वो चोरी करता है. कृष्ण कैसा बोले अपने मुंह से, मैं आई एम दैट ग्रेट पर्सनालिटी, चोरी करने वाला. अच्छा हाँ बोलो. तो अच्छा तो आप आते नहीं हो ना वृंदावन? आना ज़रूरी नहीं पड़ता. ऐसा भी सुना है यहाँ पे चोर वोर रहते हैं, तो आई थोड़ा दूर ही रहती हूँ. अच्छा अच्छा लेट्स प्ले, व्हाई डोंट यू कम एंड विल प्ले. हाँ चलो खेल. तो दोनों लाला लाली दोनों खेल के थक गए. भूख लगती है, बच्चे हैं, थोड़ा खेलने के बाद भूख लगती है. तो दोनों यशोदा मैया के पास गए. थोड़ा यशोदा मैया ने खिलाया दोनों. फिर बच्चे खेलने के बाद थक जाते हैं, खाना खाने के बाद सोते हैं.
बोला दोपहर का टाइम है, सो जाओ। तो कृष्णा जाके बैठ गया, तो बोला बगल में लेट जाओ। राधा रानी को बोला, राधा रानी बोली नहीं, एक काले के पास ले। Such partiality in receiving the Lord's mercy is relative to the recipient, and it is not due to the partiality of all merciful Lord. When the Lord The listens- Lord's mercy. I'll tell you one more small story. Once there was one, and it's a true story. I mean, it's a true fact which happened around 25-30 years before in Vrindavan. It has happened in Pradesh. एक बार एक बड़े मठाधीश थे, बड़ा मठ था, और उनकी गौशाला भी थी, और उस गौशाला में एक लड़का काम करता है, गायों को साफ करना, क्लीन करना, और एक नंबर का बुद्धू डफर, नॉट अ वेरी स्मार्ट बॉय, दिया वो काम करेगा। बट एक था, उसको अपने गुरु के वचनों पे पूरा विश्वास था। He had full faith on the words of his spiritual master. And एक दिन कथा सुन रहे थे, तो महाराज जी कथा बोल रहे थे, तो that boy was listening, and what did महाराज से? He said, देखो कृष्ण है ना, हमेशा गैया को चराते थे, गैया को लेके चलते थे, this and that, and भांडीर वन में जाके गैया चराने लेके जाते थे, इस वन में लेके जाते थे। ये सोचा, उसका सोच तो वही लेवल का है। See how it, the difference I'm trying to explain. हमारा सोच जब भगवान की रासलीला सुनते हैं तो हम हमारी लेवल से रासलीला को एनालाइज करते हैं कि रासलीला मीन्स अ बॉय एंड अ गर्ल रोमांटिक सिचुएशन, बट दैट्स नॉट द केस। बट द सेम थिंग कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस लीला, फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, wherein this boy, his name was Bonduram, एकदम बंधु था, कुछ नहीं किया, डब्बू नंबर। तो उसने सुना, उसने सोचा गाय चराते होंगे तो मुझे मिलना चाहिए ना, भांडेरवन में अभी भी है, भांडेरवन में लेके आते रहेंगे भगवान अपनी गैया को। देखता हूँ, कल जाऊंगा ना गैया को लेके, तो ध्यान से देखता हूँ, शायद सबको मिलते रहेंगे। तो भांडेरवन गए गैया को लेके, और आज गैयों पे ज्यादा नहीं ध्यान था वन के अंदर कोई आ रहा है क्या, कृष्ण आ रहे हैं क्या अपनी गैयों के साथ। अचानक थोड़े देर में देखा पीताम्बर डाल के कृष्ण आ रहे हैं। could not believe his eyes. Krishna is coming with big herd of cows. As soon as he saw that, he was for a split second he was wondering, यही भगवान है क्या, ये वही है क्या जिनकी मैं हमेशा लीला सुनता हूँ। तो आए, नजदीक आए, भगवान आए गैयों के साथ। तो उन्होंने पूछा, अरे भाई आप वही हो ना जिनके बारे में मैं सुनता हूँ? हाँ, मैं वो भगवान हूँ जिसके बारे में मैं वो कृष्ण हूँ। अच्छा, आप हमेशा आते हो? हाँ, मैं तो हमेशा गोचरण करता हूँ। आप सबको मिलते रहेंगे, मुझे नहीं मिलेगा। इतने सालों से मैं अभी आ रहा हूँ, मगर मैंने कभी आपको देखा नहीं है, शायद मैंने आपको ठीक से ढूंढा नहीं या किसी से आपको देखा नहीं। देखने में भगवान बोले, अच्छा कुछ खाने को है क्या? है। तो क्या है? 2 रोटी है मेरे पास। हाँ ठीक है, थोड़ा कुछ खिलाओ मेरे को। दोनों बैठे, भगवान भी बैठे, बोंदूराम भी बैठा, दोनों रोटी बात करते करते खा गए। चलो काम करना, कल थोड़ा ज़्यादा लेके आना, मैं बहुत खाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगता है, गायों को चराता हूँ ना, बहुत भूख लगता है। अच्छा ठीक है। गया घर पे, जब वापस मठ में गया, ना गुरुजी को कुछ बोला ना किसी को कुछ बोला। हम लोग होते तो पहले तो भगवान 1 मिनट सेल्फी ले लेते। पहले हमारा काम क्या होगा, लेट मी टेक ए सेल्फी विथ यू एंड देन इंस्टाग्राम में भगवान के साथ। आजकल तो एक प्लेट खाना के साथ भी आप लोग फोटो देखते हो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। अरे क्या खा रहे हो, क्या, व्हाट यू वांट, हु इज इंटरेस्टेड इन सीइंग व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हाट यू आर नॉट ईटिंग? And immediately this boy was cool.
Simplicity is what is the most important, possession what can have a devotee can. One should have simplicity. Simple. Immediately next day morning, जो वहाँ का जो कुक रहता है उसको बोला कि भाई थोड़ा ज़्यादा देना मुझे. और ज़्यादा मतलब क्या? एक 6 रोटी दे देना. और छोटी रोटी के साथ गांव में खाते क्या है? एकदम गुड़ और मिर्ची. बोला नहीं, बोला आप लोग शायद रोज, आप लोग जब गाय चराने लेके जाते हो तो मिलते रहेंगे. मुझे लगा मुझे नहीं मिले. उसने पहला तो उसका मुंह देखा, बोला भगवान तुझे मिले. अच्छा तो एक काम कर, तो उस भगवान को मेरे पास लेके आ. बोलना मेरे गुरुजी को आपको दर्शन करना है. लेके महाराज ने सोचा कोई ना कोई रहेगा ढोंगी पीला धोती पहन के, हाँ वो एक मोर पंख लगा के अपने आप को भगवान बोल के इसका खाना खा रहा है. तो बोला ठीक है, जाके उसको लेके आते. ठीक है, तो आज पूरा खाना लेके गया. तो भगवान बोले क्या आज क्या लाया? बोला वही रोटी अचार गुड़. लो आप भी अच्छे से खाइए. भगवान ने पहला निवाला खाया. तो भगवान को बोला देखो आपको है ना मेरे गुरुजी ने बुलाया, मेरे गुरु ने बुलाया, आपको चलना पड़ेगा. देखो गुरुजी आपके होंगे मेरे नहीं. आपके गुरु होंगे मेरे नहीं है. मैं किसी को ऐसा दर्शन नहीं देता. मैं मेरा मन से स्वेच्छा से, that's why he is called as आत्माराम. उनकी इच्छा हुई मैं आ गया, आपको दर्शन दिया. मैं उनको दर्शन नहीं देना. आप कैसे मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं देंगे? आज जो भी मुझे आपके बारे में पता चला, किससे पता चला? तो आई हैव टू रेस्पेक्ट हिम. तो आपको चलना ही पड़ेगा. बोला नहीं मैं नहीं चलूंगा, बिल्कुल नहीं चलूंगा. खा रहे इसने क्या किया? रोटी छीनी. ये गुरुजी का, ये गुड़ भी गुरुजी का, ये रोटी भी, ये पत्तल भी गुरुजी का. गुरुजी को दर्शन नहीं देना है, गुरुजी का रोटी खाना है. नहीं मैं नहीं दूंगा आपको रोटी. दोनों के बीच में झगड़ा, तू मैं झगड़ा चल. एंड में बोला मुझे तुझसे मिलना भी नहीं, अगले बार मिलना भी नहीं. बोला ये बड़े बड़े योगी हजारों बरस तपस्या करते हैं मेरे 1 मिनट झलक पाने के लिए. हाँ, फॉर 1 स्प्लिट सेकेंड ऑफ माई दर्शन योगीज आर डूइंग thousands of years of hard तपस्या. मैं तुझे इतने सुलभता से मिल गया हूं, मेरा कीमत नहीं है क्या तुझे? वो सब मुझे पता नहीं. My guru is more important for me because he has told me about you. He has described me about you, so you will have to come with me. जाओ. सच्ची जाओ. एकदम एंड में this Bondhuram left, started moving. तो भगवान त्रिलोकनाथ ना भिखारी कहते ए रुक मत जा तू. मैं जा रहा हूं, तुम मेरे गुरुजी को दर्शन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तुम अगर नहीं देने वाले हो तो मैं जा रहा हूं. मेरे गुरुजी ने बुलाया, तुमको चलना है. सी यू अंडरस्टैंड, आई एम सुप्रीम गॉड. सब समझाए. बोंधुराम को पल्ले कुछ नहीं पड़ा, बस गुरुजी ने बोला आपको आना है. एंड में भगवान है ना उसके ऊपर चढ़ गए, उसके कमर में पैर रखे चढ़ गए. बोला तू रुक, अभी भी मत जा. तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? ठीक है बाप चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ. एंड he took him. This is a true incident which happened in Vrindavan. With that boy, Lord sitting on his hip came to the matha where the Mathadish, the main Swamiji, he came down, and when he saw Lord sitting on his thing, and then Lord got down in front of him. हाँ अब बोल क्या चाहिए, मैं आ गया हूँ दर्शन देने के लिए. The Swamiji, that Mathadish, did not fall down at the feet of the Lord. He fell down at the feet of the boy. You are